मसीह जीवन का उद्देश्य है मृतकों में से जी उठाए जाना। That's why Jesus came. इसीलिए यीशु आए थे। You know, an amazing thing that I want to tell you is that let's go to Romans 5:12 and then we'll come back here again. हम रोमी 5:12 पे चलते हैं, फिर वापस यहाँ आएंगे। It says, therefore, just as through one man sin entered the world. और यहाँ लिखा है कि एक ही मनुष्य के द्वारा संसार में पाप आया, And death through sin. और पाप के द्वारा मृत्यु, And thus death spread to all men because all sinned. और इस तरह मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब पापी हैं। Just think about this. इसके बारे में सोचिए। Death was never the plan of God for humanity. मृत्यु कभी भी परमेश्वर की योजना नहीं थी मनुष्य जाति के लिए। But because of the sin, death entered into the world through one man called Adam. लेकिन पाप के कारण मृत्यु इस दुनिया में प्रवेश कर गई एक मनुष्य आदम के द्वारा। Let's read 1 Corinthians chapter 15 verses 21. हम पहला कुरिन्थियों 15 उसका 21 पढ़ते हैं। For since by man came death. मृत्यु तो मनुष्य ही के द्वारा आई। Now I want you to hear it again. For since by man came death. मृत्यु तो मनुष्य ही के द्वारा आई। Hear it again. दोबारा सुने। For since by man came death. मृत्यु तो मनुष्य ही के द्वारा आई। Many times we think God is the author of death. कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर है मृत्यु को रचने वाला। No, but the Bible tells us जी नहीं, बाइबल हमें बताती है that death came through man. कि मृत्यु मनुष्य ही के द्वारा आई है। And that's why the next part says, and by man also came the resurrection of the dead. और अगला भाग हमें बताता है इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। So hear carefully, church. I'm about to tell you an amazing mystery. ध्यान से सुनना, कलीसिया में एक अद्भुत रहस्य आपको बताने वाला हूं। The sad thing is that Easter or Resurrection Sunday has just become a one-day event wherein people remember the resurrection of Jesus. दुख की बात यह है कि ईस्टर या रिजरेक्शन संडे एक दिन की घटना हो गई है जहां पर लोग याद करते हैं उसको एक घटना के रूप में बस। It has just become an event of the past that happened. वो एक ऐसी घटना हो गई है जो कभी इतिहास में घटी थी। But do you know that the resurrection of Jesus is so intertwined with us? लेकिन क्या आप जानते हैं यीशु का पुनरुत्थानित होना हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है? The reason why he died was for us. वो जिस कारण से मरा वो हम ही थे। The reason why he had to be resurrected is for us. और जिस कारण से वो उसका मौत को हराकर जी उठना जरूरी था वो हमारे लिए था। Now I am about to tell you something so powerful. I want you to listen to me very carefully. मैं कुछ बहुत ही शक्तिशाली आपको बताने वाला हूं, इसलिए मैं चाहता हूं आप ध्यान से मुझे सुने। For through Adam came death. आदम के द्वारा मृत्यु आई। Through man came death, the Bible is saying here in मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, बाइबल 1 Corinthians 15:21. पहला कुरिन्थियों 15:21। And then the Bible is saying by man also came the resurrection. और आगे बाइबल कह रही है मनुष्य ही के द्वारा पुनरुत्थान आया। And the Bible talks about two kinds of Adam. और बाइबल बात करती है दो तरह के आदम की। First Adam was an earthly man, Adam. पहला आदम एक दुनियावी पुरुष था, आदम। And death entered into the world through him. और इस दुनिया में मृत्यु प्रवेश करी उस आदम के द्वारा। Now I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल What is the antidote of death? तो फिर इस मृत्यु का हल क्या है, उसका समाधान क्या है? What is the answer of death? मृत्यु का जवाब क्या है? Resurrection. पुनरुत्थानित होना या मौत को हराया जाना। So now hear carefully. दोबारा सुन ध्यान से। Jesus did not come to die. यीशु मरने के लिए नहीं आए। Jesus came with resurrection. यीशु आए मौत को हराना लेकर के, पुनरुत्थानित होने के। But to be resurrected, you have to die. लेकिन पुनरुत्थानित होने के लिए उनका मरना जरूरी था। Hear carefully, church. ध्यान से सुना। First Adam brought death. पहला आदम मृत्यु ले आया। Jesus came with the answer of that. यीशु आए उस मृत्यु का जवाब या समाधान लेकर के। So death was not the destination. He didn't come to die. He came with the resurrection. तो मृत्यु ही वो उद्देश्य या वो मंजिल नहीं थी, वो तो उस मृत्यु का उत्तर लेकर के आए थे, यानी कि मुर्दों में से जी उठना। Because of the first Adam, the entire humanity had died and death was reigning over the entire humanity. पहले आदम के कारण और पहले आदम के द्वारा मृत्यु मनुष्य जाति में प्रवेश की और सब मनुष्यों पे प्रभुता कर रही थी। That's why Jesus became one with man इसीलिए यीशु मनुष्यों के साथ एक हो गया and became a man.
और खुद मनुष्य रूप धारण कर लिया and he tasted death, और उसने मौत को चख लिया, so that Bible says through death he might defeat death. ताकि जैसे बाइबल कहती है कि मृत्यु के द्वारा वो मृत्यु को हरा दे। I hope you're getting what I'm saying. मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं। First Adam brought death. पहला आदम मृत्यु लाया, Jesus brought resurrection. यीशु उस मुर्दों में से जी उठना लेकर आया। But to be resurrected, you have to die. लेकिन मुर्दों में से जी उठने के लिए उसका मरना जरूरी था। That's why the entire Christian faith is completely futile if Jesus would have not been resurrected. इसीलिए पूरा मसीह विश्वास व्यर्थ है अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना हुआ And होता। that's what Apostle Paul is saying in 1 Corinthians chapter 15. और यही है जो पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में कह रहे हैं। Verse 17, we'll read it again. And if Christ is not risen, your faith is futile and you are still in your sins. 17वीं आयत हम दोबारा पढ़ेंगे। यदि मसीह जी ना उठे तो आप लोगों का विश्वास करना मिथ्या है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हुए हैं। Verse 18, then also those who have fallen asleep in Christ have perished. 18वीं आयत, इतना ही नहीं जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मरे हैं उनका भी विनाश हुआ है। Hallelujah. Can you see it, church? क्या आप देख सकते हैं कलीसिया That without resurrection, the death of Jesus had accomplished nothing. कि पुनरुत्थान के बिना यीशु की मृत्यु से कुछ हासिल ना होता। Because again, Jesus came for resurrection. क्योंकि यीशु मृत्यु में से मौत में से जी उठने के लिए आए, पुनरुत्थान के लिए आए। He never said, I am the life and I am the death. उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही जीवन और मैं ही मृत्यु हूँ। He said, I am the resurrection and I am life. उन्होंने कहा मैं पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ। In John 1:4, यूहन्ना 1 उसका the 4, Bible says, in him was life and the life was the light of men. बाइबल कहती है उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। John 10:10, it says, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they might have life and they may have it more abundantly. यूहन्ना 10:10, चोर केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो और बहुतायत का जीवन प्राप्त करो। So that's why we have to understand that Jesus united himself with humanity and tasted death for man, because man was already in the dominion of death. So Jesus also came under the dominion of death and died with man. तो हमें यह समझना जरूरी है कि जब यीशु मसीह आया वो मनुष्य जाति के साथ एक हो गया, क्योंकि मनुष्य जाति मृत्यु की प्रभुता के अधीन थी। तो यीशु मनुष्य के साथ एक होकर के उस मृत्यु की प्रभुता के अधीन हो गया। And then after 3 days, और 3 दिन के बाद Jesus Christ was raised back to life. यीशु मौत को हराकर जी उठा। But if Jesus would have raised alone, लेकिन अगर यीशु अकेला मौत को हरा के जी then उठा it would have been a good story to remember and celebrate and clap. तो ये एक अच्छी घटना होती जिसको हम पढ़ते, याद करते और ताली बजाते। But the Bible tells us something powerful that happened when Jesus was resurrected. लेकिन बाइबल कुछ बहुत ही शक्तिशाली बताती है जब यीशु मौत को हरा के जी उठा। Let's see it from the word. हम वचन से देखते Book of Ephesians chapter 2, we'll read from verses 4 till 7. हैं। इफिसियों 2 उसके 4 से 7 तक हम पढ़ेंगे। But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together. I want you to focus on the word together with Christ. By grace you have been saved and raised us up together, again the word together, and made us sit together, again the word together, in the heavenly places in Christ Jesus. परंतु परमेश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमको इतना प्रेम किया कि उसने हमें मसीह के साथ, यहाँ 7 शब्द है जिस पे ध्यान दे, उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने यीशु मसीह के साथ, दोबारा से 7 शब्द का इस्तेमाल है, हमें यीशु मसीह के साथ हम लोगों को पुनर्जीवित किया और उन्हीं के साथ स्वर्ग में बैठाया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया।
See, again, the Bible is saying that when Jesus was made alive, we were made alive with him. बाइबल ये कह रही है कि जब यीशु मौत को हरा के जी उठा तो हम भी उसके साथ जिंदा किए गए. A beautiful word here is together. जो खूबसूरत शब्द यहाँ पे हम देखते हैं वो है साथ. We see 3 times this word has been used. हम 3 बार देखते हैं कि ये शब्द इस्तेमाल होता है. That Father made us alive together with Christ. कि पिता ने हमें यीशु के साथ जिंदा किया We were and raised us up together with Christ और उठा के हमें यीशु के साथ उठा लिया and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. और यीशु के साथ हमें उसने स्वर्गीय स्थानों में बैठाया. Wow, hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो. That's such a glorious news. ये बहुत ही महिमा से भरी हुई खबर है That when Jesus was raised back to life, we were raised with him. कि जब यीशु को वापस जिंदा किया गया तो हम उसके साथ जिंदा किए गए. Jesus was not raised alone. यीशु को अकेले ही जिंदा नहीं किया गया, We were raised with him. हम भी उसके साथ जिंदा किए गए. That's why Jesus had come to the world, इस ही लिए यीशु दुनिया में आया, to give life and resurrection to a dead and dying world. जीवन और पुनरुत्थान देने के लिए एक मरते हुए संसार को. That's why Jesus said, anyone who will believe in me will not perish, will not die. इसीलिए यीशु ने कहा जो कोई मुझ पे विश्वास करे वो नाश ना होगा. And if you're hearing my voice and if you have not given your life to Jesus, I want to say today is that day. Believe in Jesus, believe in him, and he will give you the gift of everlasting life. और अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना जीवन नहीं दिया है तो मैं आपसे कहता हूं आप यीशु को ग्रहण कर लें क्योंकि वो आपको वो अनंत जीवन का वरदान देना चाहता है. So as we read in the Bible, you know that through man came death. हमने बाइबल में पढ़ा कि मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई. Death was never God's plan. मृत्यु कभी भी परमेश्वर की योजना नहीं थी. In fact, the Bible says in 1 Corinthians 15:26, the last enemy that will be destroyed is death. यहाँ तक कि पहला कुरिन्थियों 15 उसके 26 में बाइबल ये कहती है कि सबसे अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु. You know, now if you are a believer of Lord Jesus Christ of Nazareth, death has no power over you. अगर आप यीशु पे विश्वास करने वाले हैं तो मृत्यु का आप पर कोई बल वश नहीं है. Colossians 1:13 says that the Father has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear son. कोलोसियों 1:13 वचन कहता है कि पिता ने हमें मृत्यु की सामर्थ्य के अधीन से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के ज्योति के राज्य में ले आया है. Come on, if you are hearing this, declare, I am delivered from death. अगर आप ये सुन रहे हैं तो कहें मैं मृत्यु से छुड़ाया गया हूं. Death has no power over me मृत्यु का मुझ पर वश नहीं चलेगा because we are raised together with Christ Jesus. क्योंकि हम यीशु के साथ दोबारा जिंदा किए गए हैं. So that is the mystery of resurrection. ये उसके पुनरुत्थान का रहस्य है. That's the mystery of what we call Easter or the Resurrection Sunday. ये वो रेजरेक्शन संडे या ईस्टर का रहस्य है. That it's not just a historical event that we celebrate, it's a reality that we have to live by. कि ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं जिसको हम मनाते हैं, जिसके कारण खुश होते हैं, लेकिन ये वो हकीकत है जिसको हम जी रहे हैं. We are people who are living in a greater reality. हम वो लोग हैं जो एक बड़ी वास्तविकता में, एक बड़ी हकीकत में जी रहे हैं. Let's go to that chapter again, 1 Corinthians chapter 15. We will read verses 19. हम पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 19वीं आयत को पढ़ेंगे. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. यदि मसीह पर हमारी आशा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय या अभागे हैं. No. We are not just believing Jesus for this 60, 70, 80 years. हम केवल यीशु पर विश्वास इन 60, 70, 80 सालों के लिए नहीं कर रहे हैं. No. जी नहीं. We believe in Jesus because he has loved us first and he has filled us with his spirit so that we can see clearly the reality of the scriptures. हम यीशु पे इसीलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया और हम उसकी उस वास्तविकता को उसके वचन में देख सकते हैं. You know, so even the physical death will be defeated. यहाँ तक कि जो शारीरिक मृत्यु है वो भी हराई जाएगी. You know, if you read the gospel, when Jesus was raised back to life, he had a glorious body. अगर आप सुसमाचार में पढ़ेंगे जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ तो उसका शरीर महिमान्वित था. We saw how one of the disciples, Thomas, he was doubting and Jesus came to him and told him, Thomas, put your finger on the wound
and we saw that there was no blood or there was no pain. और हम देखते हैं जब थोमा ने उस पे संदेह किया यीशु के जी उठने पर, तो जब यीशु उस कमरे में आए जहां चेले थे, तो यीशु ने कहा, थोमा मेरी पसली में हाथ डालकर देख ले कि मैं वही हूं, जिसमें उसमें घाव तो था लेकिन ना उससे खून बह रहा था और ना ही उसको दर्द हो रहा था। Yeah, that's the glorious truth that one day we will exactly become like Jesus, even physically. और यही वो महिमान्वित हकीकत है कि एक दिन हम लोग यीशु की तरह हो जाएंगे शरीर में भी। In your spirit, you're already like him right now. अपनी आत्मा में इसी समय आप यीशु की तरह हैं। The same resurrection power that raised Lord Jesus Christ from the dead is already in your spirit right now. वही पुनरुत्थान का सामर्थ्य जिसने उठाकर यीशु मसीह को जिंदा कर दिया मुर्दों में से, आपके शरीर में इस समय बह रहा है। That is the glorious truth, church. ये वो महिमान्वित हकीकत है। I would read that from Romans 8:11. मैं रोमी 8:11 से पढ़ूंगा वो आपके But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। This is one of my favorite scriptures in the Bible. ये मेरी पसंदीदा आयतों में से एक है बाइबल में से। That the same spirit, कि वही आत्मा, not a different spirit, एक अलग आत्मा नहीं, same spirit वही आत्मा that raised Lord Jesus Christ from the dead. जिसने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। Apostle Paul is saying that the same spirit dwells in you. पौलुस प्रेरित ये कह रहे हैं कि वही आत्मा आप में रहता है। Not that he will dwell in you, he dwells in you right now. ये नहीं कि वो एक दिन आप में रहेगा, लेकिन ये कि वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया आप में रहता है। And then the verse says, he who raised Christ from the dead will also, not might also, but with surety it will happen. That same spirit will give life, God kind of Zoe life, to even your mortal bodies through his spirit who dwells in you. और फिर लिखा है, वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वो आपके नश्वर शरीर को भी जीवन देगा। ऐसा नहीं कि शायद देगा, लेकिन लिखा है निश्चय ही वो आपके शरीर को जीवन देगा। So we have the same spirit in us right now. तो वही आत्मा हमारे अंदर है इस समय। And we are right now in mortal bodies. This body is a perishable body. और हम लोग एक नश्वर शरीर में है जो नाश होता है। You know, you see people getting older. We see people getting sick, people getting weak. They get older. But the Bible is telling us a time is going to come, in a twinkling of an eye, the imperishable will swallow the perishable. और हम देखते हैं कि हम ऐसे शरीर में जहां लोग बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन बाइबल कह रही है एक ऐसा समय आ रहा है जो अनश्वर है वो नश्वर को खा जाएगा। The immortality will swallow the mortality of human flesh. अनंत जीवन मृत्यु को, या जो नाश होने वाला मनुष्य शरीर है उसको खा जाएगा और उसको अनश्वर बना देगा। Do you know, until that happens, your salvation is not complete? क्या आप जानते हैं जब तक आपके साथ ऐसा ना हो आपका उद्धार पूरा नहीं हुआ? It's not just that Jesus came and he died and we believe in him and now we'll go to heaven. No. What happened with Jesus, it exactly should happen to us. केवल इतना ही नहीं कि हम यीशु मसीह आए, अब हम उन पे विश्वास करते हैं, अब एक दिन हम स्वर्ग चले जाएंगे। जी नहीं, इतना नहीं, लेकिन जो कुछ यीशु के साथ हुआ, जब तक वो हमारे साथ ना होगा हमारा उद्धार पूरा नहीं है। As we were born from first Adam, we were earthly. जब हम पहले आदम से पैदा हुए तो हम शारीरिक या दुनियावी थे। When we got born again, we got born from God. We got born from second Adam, that is heavenly. जब हमने नया जन्म पाया तो वो जन्म हमने परमेश्वर से पाया, उस दूसरे आदम के स्वरूप में जो स्वर्गीय है। Let's see the scripture. 1 Corinthians chapter 15 verses 49. पहला कुरिन्थियों 15 उसका 49 देखते हैं। And as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the heavenly man. जिस तरह हमने मिट्टी के बने हुए मनुष्य का स्वरूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्गीय मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। Wow. वाह, That is our reality, church. ये हमारी असलियत है कलीसिया। That one day
कि एक दिन we will exactly be like Jesus. हम हूबहू यीशु की तरह I'm हों। not saying we'll become Jesus, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम यीशु बन that you will जाएंगे, lose your identity. कि आपकी अपनी पहचान नहीं होगी। No, we'll be exactly like him. मैं ये कह रहा हूँ कि हम हूबहू उसकी तरह होंगे। It won't be that in heaven we will be inferior beings, or when he comes in his kingdom we will be inferior. No, we will exactly be like him. ऐसा नहीं होगा कि उसके राज्य में या स्वर्ग में हम उससे तुच्छ प्राणी होंगे, लेकिन जब वो अपने राज्य में आएगा तो हम उसके सामान्य, उसके स्वरूप में होंगे। We see that in one more scripture here, 1 John 3:2. हम इस बात को एक और आयत में 1 यूहन्ना 3:2 में देखते हैं। Beloved, now we are children of God. प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान Hallelujah. हैं। Not that you will become children of ये God. नहीं कि हम होंगे, The लेकिन Bible is saying now we are children of God. बाइबल ये कह रही है कि अब हम परमेश्वर की संतान हैं। Come on, I want you to declare now I am a child of मैं God. चाहता हूं आप घोषणा करें मेरे साथ कि अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। And it has not yet been revealed what we shall be. किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बनेंगे। Hallelujah. That's what I'm telling you. यही मैं आपको बता The रहा हूं। mystery, the way, there is so much God has kept for us. That God has kept for his body. इतना कुछ है जो प्रभु ने हमारे लिए अपनी देह के लिए रखा है। It is, the Bible is saying, it has not yet been revealed what we shall be. बाइबल ये कह रही है कि अभी तक प्रकट नहीं किया गया है कि हम क्या होंगे। But we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि जब मसीह प्रकट होंगे तो हम उसके सदृश या उसके समान बन जाएंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। So many people are so afraid of the second coming of Jesus. बहुत से लोग इतना घबराते और डरते हैं यीशु के दूसरे आगमन के नाम से ही। The church doesn't have to be afraid. कलीसिया को डरने की आवश्यकता नहीं है। He's coming for his church, for his bride. वो यीशु अपनी कलीसिया के लिए, अपनी दुल्हन के लिए तो आ रहा है। The same Christ who is coming, he's the same Jesus who lives in you. और जो यीशु आ रहा है वो वही यीशु है जो आप में इस समय रहता है। It's not like when he will come, he'll forget who you are. ऐसा नहीं है कि जब वो आएगा तो वो भूल जाएगा कि आप कौन हो। He says, I know my sheep. वो कहता है मैं अपनी भेड़ को जानता हूँ। The Bible says, I have called you by your name. बाइबल कहती है मैंने तुझे अपने तेरे नाम से बुलाया है। So he knows us. वो जानता है We are हमें। his people. हम उसके लोग हैं। But the Bible is saying, when he will be revealed, we shall be like him. लेकिन बाइबल ये कह रही है जब वो प्रकट होगा तो हम उसके जैसे हूबहू उसके जैसे होंगे। Hallelujah. Hallelujah. When our king comes back in glory, जब हमारा राजा अपनी महिमा में वापस आता है we will be revealed in glory with him. तो हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे। That's why the Bible says, Christ in me, the hope of glory. इसीलिए बाइबल कहती है यीशु जो मुझ में रहता है वो महिमा की आशा है। Not the Christ who will come, but the Christ who's already in me. He is preparing me to be revealed in that glory in the coming time. वो मसीह नहीं जो आएगा, लेकिन वो मसीह जो मुझ में रहता है, वो मुझ में महिमा की आशा है, वो मुझे तैयार कर रहा है उस महिमा के लिए जो प्रकट होगी। Why? Because the Christ who lives in me is the same Christ who is coming back into the world. और ऐसा क्यों? क्योंकि वही मसीह जो मुझ में रहता है वो वापस दुनिया में आ रहा है। Amen, church? आमेन। So I want you to be very excited because we have a glorious destiny. इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप बहुत उत्साहित हों क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य महिमा से भरा हुआ है। The Bible says that our spirits have been sealed with the Holy Spirit. बाइबल कहती है हमारी आत्मा पर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है। So you have received that gift from God. That's why Holy Spirit is a gift as a guarantee of your redemption, as a guarantee of that glory that will be revealed in you and through you. परमेश्वर की ओर से आपको वो वरदान, वो तोहफा मिला है, वो निश्चय मिला है पवित्र आत्मा के रूप में जो आप में है और आप पर है। Hallelujah. हालेलुया। That's why our entire hope is in the resurrection. इसीलिए हमारी पूरी आशा उस पुनरुत्थान में या मौत को हराकर जी उठने में है। You know, if you see today's church, today's Christianity, 95% of the songs are about the cross, and that's amazing. But what I'm saying is, we have not yet focused on the resurrection as we have focused on the cross. अगर हम आज की मसीहत को देखें या मसीह गानों को देखें तो 95% गाने क्रूस पर है
और वो अच्छा है, मैं कहता हूँ, लेकिन अभी तक हमने अपनी दृष्टि उस पुनरुत्थान की ओर नहीं लगाई। वो यीशु जो मौत को हराकर जी उठाए उस पर नहीं लगाई। Yes, it starts from the cross, हाँ, क्रूस से शुरू होता है, but it does not end at the cross. लेकिन कहानी क्रूस पर खत्म नहीं होती। It ends at the throne. वो कहानी खत्म होती है जहां यीशु सिंहासन पर विराजमान Lord है। Jesus Christ went to the cross for just 6 hours. प्रभु यीशु क्रूस पर केवल 6 घंटे के लिए था। But now, as the King of glory, as the Lord of universe, as the Alpha and Omega, as the beginning and the end, He is seated on that throne in heaven and He is ruling and reigning over the universe. लेकिन अब महिमा के राजा के रूप में, परम प्रधान, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत के स्वरूप में वो हमेशा के लिए अपने सिंहासन पर विराजमान है। And the good news is that we are seated with Him. और अच्छी खबर ये है कि हम उसके साथ बैठे हुए हैं। That's why when the Bible talks about believers, it doesn't say sinners, it says beloved, it says saints, it says people of God, redeemed, and we need to see ourselves as heaven sees us. इसीलिए जब बाइबल हम लोगों से बात करती है, विश्वासियों से बात करती है, तो बाइबल ये नहीं कहती पापियों, बाइबल कहती है संतों, प्रियजनों, चुने हुए, छुड़ाए हुए लोगों। इसीलिए हमें वैसे देखना है अपने आप को जैसा स्वर्ग हमें देखता So है। come on, declare right now, say I am a saint of God. मेरे साथ ये घोषणा करें, मैं परमेश्वर का संत हूँ, I am a chosen one. मैं चुना हुआ हूँ, I am an elect. मैं अलग किया गया I am हूँ, a chosen generation. मैं चुनी हुई पीढ़ी हूँ। That's how we should look at us as heaven looks at us. ये वो तरीका है, ये वो नजरिया है जिससे हम अपने आप को देखें, क्योंकि स्वर्ग हमें ऐसे ही देखता है। Amen. आमेन। So when Jesus was raised back, we were raised with Him, and that glory will be revealed. It has not yet been revealed. तो जब यीशु मौत को हरा के जी उठा, हम उसके साथ जिंदा किए गए, और ये महिमा अभी प्रकट होनी बाकी है, अभी तक प्रकट नहीं हुई। Christ in us is the hope of that glory. मसीह यीशु जो हमारे अंदर रहता है, वही महिमा की आशा है। When people all around, they look at you, they see you as an ordinary human being. जब आसपास के लोग आपको देखते हैं तो एक साधारण मनुष्य को पाते हैं, But they don't know that you're carrying the seed of God in your spirit. लेकिन वो ये नहीं जानते कि अपनी आत्मा में आप परमेश्वर का बीज लेकर घूमते हैं। You're carrying the spirit, the same spirit of resurrection that raised Lord Jesus Christ from the dead. वही आत्मा आप अपने अंदर लेकर घूमते हैं जिसने यीशु को मुर्दों में से उठा के खड़ा कर दिया। And that life in you is growing, and slowly that life will swallow the death that is working in your body. और उस पुनरुत्थान की आत्मा का जीवन आप में धीरे धीरे बढ़ रहा है, फैलता चला जा रहा है, और जल्दी ही वो पुनरुत्थान का जीवन आपके जीवन में से मृत्यु को खा लेगा, मृत्यु का नाश कर देगा। You know, many times when people look at the world events, you know, they get so anxious, panicked, end of the world, what will happen, what is in the future. I want to tell you, our future is glorious. जब लोग दुनिया देखते हैं, दुनिया में होने वाली घटनाएं देखते हैं, आने वाली विपत्तियां देखते हैं, तो घबराते हैं, सोचते हैं कि क्या होगा। मैं आपको बताता हूं, हमारा भविष्य महिमा से भरा हुआ है। If you are in Christ, death has already been defeated in your life. अगर आप मसीह में हैं तो मृत्यु पहले से ही आपके जीवन से हरा दी गई है। You have been redeemed from the powers of darkness. आप अंधकार की ताकतों से छुड़ाकर आजाद कर दिए गए And हैं, you have been translated into the kingdom of His dear Son. और आप उसके प्रिय बेटे के राज्य में, ज्योति के राज्य में ले आए गए हैं पहले से। You know, Ephesians 2, when we were reading, it says, in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness towards us in Christ Jesus. इफिसियों 2:7 में हम देखते हैं कि उसके द्वारा उसने आगामी युगों यानी कि आने वाले समयों में अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया है हमारे द्वारा, हमारे अंदर। So many Christians get ticked off when they hear about the goodness of God. बहुत से मसीह लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं जब परमेश्वर की भलाई के बारे में They सुनते say, हैं, you are trying to tell us that God is too good. He's not that good. और कहते हैं कि आप हमें ये बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर बहुत ज्यादा अच्छा है, इतना अच्छा वो नहीं है, He is not that kind. वो इतना दयावान नहीं है। But the Bible is saying it will take us ages, and that the word there is the Greek word eon. और बाइबल ये कह रही है कि हमें युगों के युग लग जाएंगे। जो यूनानी शब्द है वो इयॉन है, यानी कि युगों के युग। And if I can say it this way, और अगर मैं it ऐसे will कहूं, take us billions and trillions of years to experience the riches of His grace, because the riches of His grace are so vast. Our mind cannot comprehend the riches of His grace. कि हमें सैकड़ों करोड़ों साल लग जाएंगे
परमेश्वर की भलाई, उसके अनुग्रह की भलाई को चख कर समझने में, क्योंकि उसका महिमा का धन, उसकी भलाई का धन बहुत बड़ा है। And it's not just riches of his grace, it says the exceeding riches of his grace. और यहाँ अंग्रेजी वाले में केवल महिमा, उसकी अनुग्रह का धन नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है जो असीम, जो सीमा से बाहर उसकी अनुग्रह का धन है, उसकी दया का धन है। And in his kindness towards us in Christ Jesus. और उसकी दया जो हम पर वो करता है मसीह यीशु में। The verse starts with, but God who is rich in mercy. और ये वचन शुरू होता है इस बात से, लेकिन परमेश्वर जो दया में धनी है। Church, कलीसिया, you know, if you read Apostle Paul, he never begged God that God have mercy. अगर आप पौलुस प्रेरित की किताबें पढ़ें तो उन्होंने कभी परमेश्वर से भीख नहीं मांगी कि हे परमेश्वर दया The कर। New Testament church never had to convince God that God might have mercy on us. But the Bible is saying He's already so merciful. There are exceeding riches of His grace that it will take us billions of years to encounter and comprehend His love towards us. नए नियम की कलीसिया को कभी गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा परमेश्वर के सामने कि वो दया करे, लेकिन बाइबल तो ये बताती है कि परमेश्वर पहले से ही दया का इतना धनी है कि हमें सैकड़ों करोड़ों साल लग जाएंगे उसकी दया को समझने में, उसकी दया का अनुभव पूरी तरह पा लेने में। So rather than trying to convince God that He might have mercy on you, why don't you just believe the scripture and thank Him that He's already so merciful towards you? तो परमेश्वर को ये समझाने की जगह कि वो आप पर दया करे, क्यों ना हम इस हकीकत को, इस सच्चाई को वचन में देख करके परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो पहले से ही दया हम पर देता है, हम पर दया का धनी है। Rather than praying like this, oh God have mercy, let us pray, Father, I thank you that you are rich in mercy. I thank you, Father, for the exceeding riches of your grace and your kindness towards us in Christ Jesus. ये प्रार्थना करने की जगह कि हे परमेश्वर हम पर दया कर, क्यों ना हम ये प्रार्थना करें, धन्यवाद पिता कि तू पहले से ही दयावान है, धन्यवाद पिता तेरी बड़ी महिमा के, तेरे बड़े अनुग्रह के धन के लिए जो तूने हम पर उंडेला है। Amen, church. आमीन।